जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 46। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानी भयो अपि मतो अधिकः कर्मी भयश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। जिस लाभ की आशा से धैर्य का सहारा लेकर कर्मकांडी लोग षट कर्म के प्रवाह में कूद पड़ते हैं, अथवा जिस वस्तु के लिए ज्ञानी लोग ज्ञान का अभेद कवच धारण करके संसार के साथ लड़ जाते हैं, अथवा तपोनिष्ठ लोग अपने मन में जिसकी अभिलाषा रखकर तप रूपी विकट फिसलने वाले और दुर्गम पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, जो भक्तों के लिए भक्ति का विषय और याजकों के लिए यज्ञ देवता है। तात्पर्य यह है कि जो सभी लोगों के लिए और सभी कालों में पर ब्रह्म रूप है, वह स्वयं हो जाता है। और जिस विचार से यह सिद्ध तत्व ही समस्त साधकों का साध्य होता है, उसी प्रकार से वह कर्म निष्ठों के लिए वंदनीय होता है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान का विषय होता है और तपस्वियों के लिए तपस्या का अधिदेवता होता है। जिसके मनोधर्म के साथ इस प्रकार जीवात्मा का संगम होता है, वह शरीरधारी होने पर भी यह महिमा या महत्व प्राप्त कर ही लेता है। इसीलिए हे अर्जुन, मैं तो तुम्हें सदा के लिए उपदेश देता हूँ कि तुम योगी बनो। Thus comparing a meditator with a man of utter self-denials, tapaswins, deep students of the scriptures, jnanis, and with ritualists, karmis, Lord Krishna concludes that a meditator, yogi, alone is the best among the whole lot, standing nearest to truth, and therefore you be a yogin, meditator, O Arjuna. Om. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. ज्या आशाच्या फायद्यासाठी संयमाच्या आधाराने कर्मकांड करणारे षटकर्माच्या प्रवाहात उडी घेतात, किंवा ज्या गोष्टीसाठी ज्ञानी लोक ज्ञानाचे अभेद्य कवच परिधान करून जगाशी लढतात, किंवा ज्या इच्छेसाठी तपस्वी लोक कठीण, निसरडे आणि दुर्गम तपश्चर्येच्या पर्वतावर चढण्याचा प्रयत्न करतात, जो भक्तासाठी भक्तीचा विषय आहे आणि पुरोहितांसाठी यज्ञ देवता आहे. अर्थ असा आहे की जो सर्व लोकांसाठी आणि सर्व वेळी परब्रह्माचे स्वरूप आहे, तो स्वतः तोच बनतो. आणि ज्याप्रमाणे हे सिद्ध तत्व सर्व साधकांचे ध्येय आहे, त्याचप्रमाणे तो कर्मभक्तांसाठी पूजनीय आहे, ज्ञानींसाठी ज्ञानाचा विषय आहे आणि तपस्वींसाठी तपश्चर्येचा मुख्य देवता आहे. ज्याचा आत्मा अशा प्रकारे त्याच्या मनधर्माशी एकरूप होतो, तो शरीरात असतानाही हे वैभव किंवा महत्त्व प्राप्त करतो. म्हणूनच हे अर्जुना, मी तुला कायमचे योगी होण्याचा सल्ला देतो. जय गुरुदेव, जय പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഷഷ്ടകർമ്മ പ്രവാഹത്തിലേക്ക് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളനുസരിച്ച് എത്തിച്ചേരുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനവും, അറിവിൻ്റെ അഭേദ്യമായ കവചം ധരിച്ച് ജ്ഞാനികൾ ലോകത്തോട് പോരാടുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനവും, ഭക്തർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തിയുടെ വിഷയവും പുരോഹിതന്മാർക്ക് യജ്ഞദേവതയുമാണ്. അതായത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും പരബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ രൂപമായിരിക്കുന്നവൻ അത് സ്വയം ആയിത്തീരുന്നു. ഈ സിദ്ധതത്വം എല്ലാ അന്വേഷകരുടെയും ലക്ഷ്യമായിരിക്കുന്ന ചിന്ത. അതുപോലെ കർമ്മഭക്തർക്ക് അവൻ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവനും, ജ്ഞാനികൾക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വിഷയവും, സന്യാസികൾക്ക് തപസ്സിൻ്റെ അധിപനായിരിക്കുന്നവനും ആണ്. ഈ വിധത്തിൽ ആത്മാവ് തൻ്റെ മനസ്സ് ധർമ്മവുമായി ഒന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു ശരീരമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മഹത്വം
അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം നേടുന്നു. അതിനാൽ ഹേ അർജുന, എന്നേക്കും ഒരു യോഗിയാകാൻ ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ఇష్టం పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదిశరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభ్యాసం అధ్యాయం 6 శ్లోకం 46. ఏ లాభాసతో ధైర్యం యొక్క సహాయం తీసుకొని కర్మకాండని ఆచరించేవారు షట్కర్మల ప్రవాహంలో దుముకుతారో, లేదా ఏ వస్తువు కోసం జ్ఞానులైన వారు అభేద్యమైన జ్ఞాన కవచం ధరించి ప్రపంచంతో పోరాడతారో, లేదా తపోనిష్ఠులైన వారు ఏ అభిలాషను ఉంచుకుని జారిపోయేది దుర్లభమైనదైన తపస్సునే కఠిన పర్వతాన్ని అధిరోహించే ప్రయత్నం చేస్తారో, ఏది భక్తులకు భక్తి విషయమే ఉన్నదో, ఏది యాజకులకు యజ్ఞదేవతయో, అనగా ఏది అందరికీ అన్ని కాలమందు పరబ్రహ్మ రూపమో ఆ రూపమైపోతాడు అతడు. మరియు ఏ ఆలోచనతో ఆ సిద్ధతత్వము సమస్త సాధకులకు సాధ్యమవుతుందో అదే ఆలోచనతో, అంటే అది పరబ్రహ్మతత్వము కర్మనిష్ఠులకు వందనీయమవుతుంది, జ్ఞానులకు జ్ఞాన విషయం అవుతుంది, తాపసుకులకు తపస్సు యొక్క అధిదేవత అవుతుంది. ఎవరి మనోధర్మంతో ఈ విధంగా జీవాత్మ సంగమం జరుగుతుందో అతడు శరీరధారి అయినప్పటికీ కూడా ఈ మహిమను లేదా మహత్యమును పొందుతాడు. అందుచేత ఓ అర్జున, నేను నీకు చెప్పే శాశ్వత ఉపదేశం ఏమిటంటే, నీవు యోగివి కమ్ము. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్ట ప్రకారమే జరగాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసన్నం. जाय लाभक आस ल क अपन धैर्य पर विश्वास राखि क कर्मकांडी लोक सब खटकर्मक प्रवाह में कूद पड़ैत छथि, अथवा जाय वस्तु के प्राप्त करबाक हेतु ज्ञानी लोकनि ज्ञानक अभेद्य कवच पहिर संसार संग संग्राम करैत छथि, वा तपस्वी लोक अपन मौन में जकर अभिलाषा राखि क तप रूपी विकट आ दुर्गम पर्वत पर चढ़ै के प्रयास करैत छथि, जे भक्तजन हेतु भक्ति केर विषय अछि, आ याजक लेल यज्ञ देवता। एकर अर्थ ई भेल जे सब प्राणी लेल समस्त काल में पर ब्रह्म स्वरूप अछि से स्वयं प्रकट भ जाइत अछि। आ जय विचार सँ ई सिद्ध तत्व समस्त साधनक अंतिम साध्य मानल जाइत अछि। ओहि प्रकार कर्मनिष्ठ लोकनि लेल वंदनीय, ज्ञानी लेल ज्ञानक विषय आ तपस्वी लेल तपस्याक अधिदेवता भ जाइत अछि। जकरा मोनक धर्म संग एहन जीवात्मक संगम भ जाइत अछि, ओ शरीरधारी होइतहु एहन महिमा आ महत्व प्राप्त क लैत अछि। तैं हे अर्जुन, हम त तोरा सदा लेल उपदेश दैत छी जे योगी बना। अखिल भारतीय संतमत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।